Did you give upbringing to your kids in which they got their mind training, that their mind was strengthened, that their mind was made powerful to deal with any difficult situation, any unfortunate situation with calmness? You don't know. बचपने से ही शुरू हो जाता है। बच्चा बाप को देखता है, दिन भर काम करता है, पैसे कमा के लाता है, माँ को देखता है, वो दिन भर घर चलाती है, खाना पीना चलता है, कपड़े अच्छे पहनते, कभी घूमने में चले जाते, कभी किसी पार्टी में चले जाते, कभी किसी वेकेशन पे चले गए, और कभी किसी शॉपिंग के लिए चले गए। जन्मदिन एनिवर्सरी आया तो कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दिया, दैट्स इट। देयर इज नो माइंड ट्रेनिंग। I know this, we don't live our life just with the body, we actually live our life with the mind. And if your mind is weak, you will be a loser in your life. I know nobody wants to be a loser, but the way you live and the way you have trained your kids, they turned out to be losers. You know why? I tell you. I meet so many people. I've met hundreds of people. At one time, I saw them very happy, very happy. बड़ा घर है, अच्छा बिजनेस है, अच्छे बच्चे हैं, और बड़ा अमेरिकनाइज्ड स्टाइल से वो रह रहे थे। जहाँ हिंदी बोलने में शर्म आती है, जहाँ पंजाबी, सिंधी, गुजराती बोलने में शर्म आती है, माने अंग्रेज क्या अंग्रेजी बोलेंगे जो ये बोलेंगे। फिर सब अच्छा है, बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, फिर मालूम हुआ बच्चे कॉलेजेस में चले गए हैं, फिर बच्चे बाहर ही बाहर हैं घर से, पहले पढ़ाई के लिए, फिर नौकरी के लिए। फिर इसी महिला को मैं जब दोबारा मिलती हूँ तो ऐसी बहुत से केसेस है, और अब वो दुखी है। क्या हुआ? बोले लड़का ड्रग्स। क्या हुआ? लड़की के पहला 1-2 बॉयफ्रेंड था, फिर वो चला गया, अब तीसरा हो गया, अब तीसरा चला गया, अब चौथा आ गया है, और वो बहुत परेशान है, और वो डिप्रेशन में है, पैरानॉइड है। शी सेज नोबडी लव्स मी, एवरीबडी यूजेस मी। She became sexually active at the age of 12. Now she is 24. She doesn't want to get married. She doesn't find someone suitable to her sensibilities, doesn't fit to what she requires, is always in her room smoking, or using a sedative to go to sleep all the time, or using a psychedelic drug. Not going to work, not going to job, and this mother was crying, what should I do? I am praying day and night. Wouldn't God listen to a mother's prayer? What a joke! When you were spoiling yours and her life, at that time you were never fearful of what you were doing. And now you are crying out. And now you are complaining to God, God is not listening. What would God do? God gave you brains, you never used it. God gave you insight, you never used it. God had created such individuals on this earth who were ready to help you out, to train your mind, to make you a strong person, and you never went to those people. कईयों को तो संत शब्द बोलते ही ना, जैसे जैसे बिजली का झटका लगता ना, ऐसा। एक बोले, मैंने अपने दोस्त से कहा, अच्छा चलो गुरु माँ आए हैं, सत्संग है उनका, चाहे तेरा दिमाग खराब हो गया। मेरा नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ अभी। किसी रिश्तेदार को पता चला कि सत्संग में जा रहे हैं, तो सबसे पहले उनने सवाल किया, पहले ये बताओ कि वो मतलब गणेश टेम्पल में कर रहे हैं तो वो हिंदू हैं, साउथ इंडियन हिंदू है, नॉर्थ इंडियन हिंदू है, पहले ये बताओ। हिंदू में भी झगड़ा, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन। अच्छा, कृष्ण भक्त है, राम भक्त है, शिव भक्त है, देवी भक्त है, कौन है? जब तुम बीमार हो जाओ, जब तुमको कोई कहे कि अमुक आदमी इज द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, यू नेवर आस्क व्हाट रिलीजन ही प्रैक्टिसेस। डू यू आस्क दिस क्वेश्चन? इट वुड लुक सो स्टूपिड. You never ask what race he comes from. And if you do that, you can be sued in the court.
for making a racist remark. जब आप किसी से बिजनेस करते हो, आप कुछ सामान बेचते हो, आपके क्लाइंट्स हैं, आप कभी नहीं पूछते हो मैं जैनी हूं, तू जैनी है, हम जैनियों को सामान बेचते, दूसरों को नहीं बेचते. You never ask this question. When you have to do business, you do it unabashedly. When you have to go to a doctor or a lawyer or an accountant, you never ask their religion. Then why do you ask what my religion is? I believe this is the most ignorant and the most illogical question. What does it affects you? And how should it? Truth remains the truth, and satsang gives you the means and methods and the power to live your life with wisdom, with awareness, and live your life consciously. तो उसमें धर्म का क्या मामला क्या आता बीच में? फिर आना नहीं चाहिए, पर कोई बात नहीं. मैं ये कहती हूं कि आप हिंदू हो तो चलो किसी हिंदू संत के ही तुम चले जाते. मैंने कल ये बहुत अच्छे से समझाया है कि संत शब्द का अर्थ क्या है. संत मतलब द वन हु हैज रियलाइज्ड द ट्रूथ, the one who was as stupid and ignorant as you are once upon a time, and then that person did work on himself or herself, and with the blessings of the guide of the master, that person slowly rose above and above and above, and then reached such a height where the divinity took an expression through that personality. धर्म का इससे कोई संबंध नहीं. आप किसी भी धर्म के हों, आप काले गोरे हों, किसी नेशनैलिटी के हों, अगर आपने MBBS कर लिया है तो आपको पता है शरीर का इलाज कैसे करना है. इसी तरह से जब आपका संपर्क, आपका सानिध्य, आपका संजोग, आपकी जो संगत है वो किसी संत के साथ होने लग जाती है, तो संत आपके मन को मजबूत करने के सब तरीके सिखा देता है. इस महिला जिसकी बेटी आज पैरानॉइड होकर साइकोलॉजिकली इल है, मानसिक रूप से बीमार है, तो उसकी दशा पर मुझको सिर्फ दया आती है और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. कहती मैंने उसको बोला चल तेरे को गुरु माँ पे पास ले चलूं, तो बोले मैंने नहीं जाना. कहती आप कुछ करिए. मैं ना हम कुछ नहीं कर सकते. आई कैन नॉट फोर्स माई सेल्फ ऑन एनीवन. I cannot do that. I am not expecting anyone that person should worship me. I don't want that. That's a stupid nonsense. But I at least expect that the person should have an urge to know from me. I am not even demanding any respect from you. Am I? मैं आपसे सम्मान नहीं चाहती हूँ. मैं नहीं चाहती आप मेरी पूजा करो. मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे को अपने से कुछ बड़ा और श्रेष्ठ मानो. लेकिन हम इतना तो जरूर चाहते हैं कि आपके अंदर जानने की इच्छा हो. अब आपके अंदर जानने की, सुनने की इच्छा हुई, आप चल के यहाँ तक पधारे हो, और मुझे बड़ी खुशी है आप आए हो, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपसे मैं बात कर पा रही हूँ. लेकिन जिसको इच्छा नहीं है उसके सामने तुम मुझको परोसना चाहोगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी. जब मैं ऐसे बच्चों को, जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ, खाने को बहुत है, पैसा भी है, घर भी है, मकान भी है, कार भी है, सब कुछ है, लेकिन अब एक चीज़ गायब हो चुकी है, वो है उनके मन का विश्राम, उनके मन की शांति. वो नहीं है उनके पास. और अजब बात देखिए, जब किसी की ऐसी दुर्दशा हो जाती है तब क्या उसका परिवार उसकी मदद कर पाएगा? बोलो. ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया जाएगा, उसको किसी मेंटल असाइलम में भेज देंगे. ये हालत हो जाती.
रोते भी हैं, भेज भी देते, क्या करें। आपका मन अगर शक्तिशाली नहीं है, अगर अगर आपका मन जागरूक नहीं है, तो आपके लिए जीवन में आई हुई छोटी से छोटी दुर्घटना या दुख भी इतना भारी पड़ सकता है कि आप अपना मानसिक संतुलन गंवा लो। अजब बात है ये। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट की बुक देख रही थी, उसमें उसका ये कहना है कि आई एम येट टू फाइंड अ नॉर्मल पर्सन। डॉक्टर डैनियल का ये कहना है, आई एम येट टू फाइंड अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि जिन लोगों को मैं नॉर्मल समझता था, जब उन लोगों का ब्रेन स्कैन किया तो पाया किसी का टेम्पोरल लोब ठीक काम नहीं कर रहा है, किसी का लिम्बिक रीजन ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखिए, ये जिनके मूड स्विंग बहुत होते हैं, मूड स्विंग मतलब अभी गुस्सा, अभी ठंडा, अभी बहुत बोल रहा है, अभी बिल्कुल चुप। आप में कितने लोग ऐसे हैं? I think so. The test which this doctor has recommended, I am going to put that test in my website also. In a day or two, please check my website gurumat.com and download that form, fill it up and send it back to me, and you too would be able to see by running that test if you will answer sincerely and truthfully. And if you don't write down lies, then that simple test is set of 40 questions will give you the answer कि आपके मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा ठीक नहीं चल रहा। जितना इतना मूड स्विंग हो तो बोले लिम्बिक रीजन में दिक्कत है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज बोल रहा है तो लेफ्ट टेम्पोरल लोब ठीक से काम नहीं कर रहा। एक ही गलती बार बार करे फिर भी ना सीखे तो उसका फ्रंटल लोब ठीक से काम नहीं कर रहा। अच्छा, आप जान के हैरान होंगे कि कोई 1500 पन्ने की उसकी पुस्तक है और ये मस्तिष्क की अलग अलग खराबियों को ठीक करने का उसने जो उपाय बताए हैं, उसमें कहीं कहीं पेशेंट के लिए कुछ केमिकल्स हैं, कुछ ड्रग्स भी हैं, कुछ दवाएं भी हैं, बट इट अ वेरी लो पोटेंसी, नॉट टू मेनी मेडिसिन। ही डजंट बिलीव्स इन मेडिसिन, एंड यू नो व्हाट ही इज रिकमेंडिंग, दिस अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट इज रिकमेंडिंग डू योगा। और ये गोरी चमड़ी वाला बोलता ना, बड़े ध्यान से सुनते हो। $1000 की फीस दे के फिर उसे थेरेपी लेने जाओगे तुम। तुम्हें मैं यहां फ्री में दे रही हूं, तुम्हें क्या चुभती है ये? थेरेपी ट्रीटमेंट क्या है? डू योगा, डू एरोबिक्स, गो एंड हैव अ वॉक इन अ पार्क। And again, this neurologist gave a stress that one should do certain types of meditations, learn Zen, learn Tai Chi, learn yoga, learn some kind of a dance, learn or listen music. That's how he is treating his patients. उसका ये कहना है कि 30,000 अमेरिकन का उसने स्कैन किया है और 30,000 में से कम 10,000 लोग ऐसे थे जो नॉर्मल दिख रहे थे, लेकिन जब उनका स्कैन किया तो पता चला दिमाग सही नहीं चल रहा है। अब जब दिमाग सही नहीं चलेगा तो उनका मन सही नहीं चलेगा, जब मन सही नहीं चलेगा तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होंगी। सोच के देखिए, जो बात आज आप मेरे से सुन रहे हैं, उम्मीद करती हूं कि समझ भी रहे। अगर यही बात आपको आपकी बालावस्था में, टीनेज युवावस्था में आपको सिखा दी जाती, आपको सिखा दिया जाता कि जो कुछ देख रहे हो, जो कुछ दिख रहा है, वह सत्य नहीं है, खेल है, माया है, illusion. Whatever you are seeing is not a reality. It is an illusion. And this is the fantastic point of this whole illusion, that it always seems like a real.
And that is why we call it an illusion. Illusion means it will look like a true, but it is not true. It is unreal. But still it looks like a real. Hence, we call it an illusion. We call it in Hindi, the word is Maya. What it seems, it's not like that. And what it actually is, if you don't know, then you are very much prepared and ready to be bandaged, to be burdened with the weight of this ignorance, with this weight of the darkness which comes along. सोच के देखो, आज इस उम्र में आप सुन रहे हो, सीख रहे हो सुमिरन करना, ध्यान करना, योग करना, यही आपका उस समय शुरू हो जाता. See, when I work with these small young kids who come to me in ashram in that youth camp, 12 years old, sometimes some family people very much are insistent that please take my child who is 6 years, or even, the youngest was 6 years old who came. He said, no, I will live here, and my elder sister and the elder brother too was there. They'll take care of me. Mom, you go. That 6-year-old too was in my camp. And believe me, the way this kid would sit still. If you go in again my website, then you can watch those videos where this 6-year-old girl is talking about her experience of coming in the youth camp, and the way she is saying it, it's such a hilarious thing, such a small package and such big things coming out of her mouth. I loved doing yoga, I loved doing meditation, and she's going on and speaking and expressing her joy. And when I see these kids who are learning these beautiful things, I know it when they'll grow up to be a perfect human beings.